Good morning, students. You know that after Diwali vacation, this chapter will come to you, and this is your supplementary 6th chapter. Its name is Weathering the Storm in Assam. I think you have heard about this, that how the storm came in Orissa and how the means we can say that many people lost their lives and property. Okay, so let's see what is given here. So before starting the chapter, just the author has given the situation of the storm in Orissa. It is written by Harsh Mandar. So Esama is the place situated in Orissa. So the cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? Here the situation you have given. The storm watch came in Orissa in October 1999. At that time, because of this storm, you know that Assam is a coastal place. So, and heavy rain is there. Okay, so that many thousands of people have died and many villages were washed out. So here one boy is given, his name is Prashant, and he was very young, okay, and he spent his 3 nights on the roof of his house, not actually his house, on someone's house. देखो यहाँ पे बताया गया है प्रशांत नाम का एक लड़का है, मे बी ही इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स का बच्चा है। तो उसने 3 दिन तक एक घर के रूफ के ऊपर वो रहा। तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे मेरी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन हिज विलेज एट दैट टाइम व्हेनेवर द स्टॉर्म केम ओवर देयर। सो अभी वो उसकी फैमिली को फाइंड आउट करने के लिए चला है। सो डिड ही गेट हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली मिलती है या नहीं, ये हम लोगों को ये चैप्टर में देखना है। सो देखो, ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house, neck deep. The building was of brick and mortar was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. Here the situation is given, students, that how the storm came and how they get alert during the time of storm. So here the writer is saying 27 अक्टूबर 1999 को उसकी मॉम मीन्स उस दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और वो जो लड़का है प्रशांत, एक्चुअली वो वहाँ पे एसामा में था। वो कोस्टल एरिया है, टाउन है छोटा सा, एंड 18 किलोमीटर उसका विलेज, उसके जहाँ पे वो एसामा में था वहाँ से उसका विलेज 18 किलोमीटर अवे था। फिर थोड़े ही समय उस वक्त वो उसके फ्रेंड के घर पे था, इवनिंग थी। डार्क और मेनांसिंग स्टॉर्म गैदर्ड, मेनांसिंग मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्रेडफुल। वहाँ पे स्टॉर्म जो है वो गैदर हो गया, ऐसा लग रहा था। तुमको पता है जब स्टॉर्म आने वाला होता है तो हमको पता चल जाता है, सब कुछ शांत होता है, क्लाउड बिकम्स ब्लैक, ओके, तो हमको पता चलता है अभी कुछ होने वाला है। जब सेम वैसी सिचुएशन थी, विंड्स जो थे उतने में इतना स्पीड विंड ने पकड़ लिया, लगभग 350 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 350 किलोमीटर क्रॉस कर जाए, इतना विंड का स्पीड था। बारिश कंटिन्यूसली, इंसेसेंट का मीनिंग होता है कंटिन्यूस, बारिश जो है वो कंटिन्यूस स्टार्ट हो गई। सारे ट्रीज जो थे, ओल्डन ट्रीज, वो पूरे के पूरे एंशिएंट ट्रीज गिर गए, दे अपरूटेड। फिर इतनी जोर से हवा थी कि जो लोगों के घर कच्चे हाउस, जिसको तुम लोग बोलते हो, एसएस में है ना कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, तो कच्चा हाउस मीन्स व्हाट, द हाउस बिल्ट विद मड एंड पक्का हाउस मीन्स द हाउस बिल्ट विद ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो जिनके हाउस
कच्चे थे। हर्ट्स हम लोग समझ लो, गांव में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हाउसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वो जो हाउसेस थे वो टूट गए, उनके जो रूफ्स थे वो वॉश्ड अवे विद द रेन वाटर, पानी के साथ वो बह गए। कितने सारे लोग ऐसे थे जो पानी के साथ बहाव में बह गए। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे रूफ के ऊपर, बट इनको डर था क्योंकि उनका भी घर जो था वो पक्का नहीं था। तो लोग रूफ के ऊपर बैठने की उन्होंने कोशिश की, बट मिडल रात में क्या हुआ, उसके वॉल्स भी गिर गए, रूफ भी गिर गए, प्रॉब्लम हो गई। अभी आगे दिया है देखो, द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of early morning, a ragged, deadly, brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in few places. Blotted animal carcasses and human corpse floated in every direction. All around, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days as followed. अभी यहाँ पे दिया हुआ है देखो, डिस्ट्रक्शन बहुत ही जोरदार हुआ था, साइक्लोन की वजह से नुकसान बहुत हुआ था। ओशन जो है उसकी जो वेव्स है उसका लेवल भी राइज हो गया था। ये जो साइक्लोन है ये 36 आवर्स तक चला, यानी 3 दिन अपने बोल सकते हैं, यानी एक दिन और दूसरा दिन आता, कंटिन्यूसली चल रहा था। उसके बाद घरों के अंदर पानी चला गया, काफ़ी सारे ऐसे पक्के हाउसेस भी जो गिर गए। हार्डली एनी और 2 हाउसेस ऐसे थे जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उसमें भी पानी घुसा हुआ है। प्रशांत जो घर के अंदर था वहाँ पे 2 कोकोनट ट्रीज इस तरह से गिरे जिसकी वजह से उनको एक शेल्टर की तरह मिल गया, और उनका रूफ जो है वो गिरा नहीं। और जो टेंडर कोकोनट्स मीन्स जो बोलते हैं अपने ऐसे कोकोनट, ग्रीन कलर के जो कोकोनट है, यानी अपने उसको बोलते हैं कि रॉ कोकोनट्स, वो अभी तक पूरी तरह से पक्के नहीं है। ऐसे कोकोनट्स बहुत नीचे आ गए थे जिसकी वजह से ये फैमिली को हेल्प हो गई कि उन्होंने वहाँ पे 36 आवर्स तक भूखे बैठना मीन्स वो कोई खाने की चीज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने वो कोकोनट्स तोड़ के वो खाए। उसके अंदर जो भी पानी होगा या जो भी मिल्क होगा कोकोनट का या जो भी रॉ कोकोनट होगा वो उन्होंने खाया। तो वो प्रशांत यहाँ पे बोल रहा है कि इट बाय ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा की वजह से शायद ये हुआ और हम लोग बचे हुए थे। दूर दूर तक हम लोगों को सिर्फ कितने सारे जो कैटल्स थे वो मरे हुए थे, उनकी बॉडी, कार्कासेस मीन्स डेड बॉडीज, उनकी बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी। कितने सारे ऐसे ह्यूमन कॉर्प्स थे, यानी ह्यूमन की डेड बॉडी, वो भी पानी के ऊपर स्विमिंग क्या फ्लोट कर रही थी क्योंकि वो मर चुके थे। तो ये जो सीनेरियो प्रशांत ने देखा तो हीज हार्ट बिकम कोल्ड, वो बिल्कुल घबरा गए कि अभी करे क्या। क्योंकि देखो तुमको पता है जैसे ही ये ऐसे फ्लड या ऐसा कुछ आता है उसके बाद एपिडेमिक शुरू होता है। एपिडेमिक मीन्स व्हाट, बीमारी, गुजराती में उसको शायद रोगचाला बोलते हैं। तो ये जो एपिडेमिक शुरू होता है उसमें काफ़ी बीमारी के अंदर लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो फिर ये डर होने लगा क्योंकि कितने सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स पानी के अंदर फ्लोट कर रहे थे उनकी बॉडीज, तो उनकी बॉडी पानी की वजह से सड़ जाएगी, सड़ेगी तो उसमें बैक्टीरिया पड़ेंगे तो पानी खराब होगा, तो वो बीमारियां फैलाएंगे। तो ये डर सबके मन में आने लगा क्योंकि सब जगह सिर्फ पानी ही पानी था। फिर क्या हुआ देखो, फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? प्रशांत 3 दिन तक मीन 36 आवर्स वो लोग वहीं पे थे। ओके, तब बारिश भी कंटिन्यूसली चल रही थी जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही भीगे हुए थे। प्रशांत के टीयर्स बारिश में दिख नहीं रहे थे। इसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि प्रशांत रोए भी तो कितना रोए, क्योंकि उसको अभी डर था उसकी फैमिली का। उसका विलेज ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था एसामा से, 18 किलोमीटर अवे, तो उसको ये डर था कि ये स्टॉर्म के अंदर मेरी फैमिली ने सर्वाइव किया कि नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रशांत के माइंड में था। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede.
Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. 2 दिनों के बाद प्रशांत को वो जो 2 दिन है वो 2 साल की तरह लगे. He felt 2 years like 2 days like 2 years, क्योंकि 2 दिन ऐसे के ऐसे बैठे रहना, हमारी फैमिली है या नहीं है, वो सोच सोच के वो टेंशन में आ गया. उसकी फ्रेंड की फैमिली ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया और उसको रुकने के लिए बोला, बट प्रशांत हैज़ टू गो. प्रशांत को तो निकलना ही था क्योंकि ही वॉन्टेड टू सर्च आउट हिज फैमिली. उसको उसकी फैमिली को ढूंढना था, इसलिए उसको तो जाना ही था, इसलिए वो वहाँ से निकल चुका. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. प्रशांत जैसे ही बारिश कम हो गई, पानी थोड़ा कम हो गया, so he decided to search out his family. जब उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, उसने अपने साथ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लिए, जैसे स्टडी स्टिक ली, दूसरा कुछ सामान लिया ताकि पानी के अंदर वो डूबे नहीं. बाबू की जैसे स्टिक ली जिससे वो सर्च आउट करता था कि जमीन कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, पानी कितना शैलो है, कहाँ पे पानी डीप है. समटाइम्स पानी बहुत शैलो था, समटाइम्स इट इज टू डीप, बहुत वेस्ट तक डीप था, और कभी कभी तो उसको स्विमिंग करके जाना पड़ा. जब वो थोड़े कुछ डिस्टेंस पे पहुंचा तो ही ऑल्सो मेट हिज अंकल्स 2 फ्रेंड. उसके अंकल के 2 फ्रेंड उसको रास्ते में मिले, वो भी विलेज रिटर्न हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब अपने साथ में ही जाते हैं. एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and the carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe means problem, मुसीबत. तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, जब वो लोग पानी में से, वेडेड मीन्स पानी में से ऐसे तैरते हुए जाना, एक्चुअली उसको वेडिंग बोलते हैं. तो जब वो पानी में से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कितने सारे, यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, द सिचुएशन इज मोर एंड मोर मैकेबर. मैकेबर मीन्स मोर डेंजरस. सिचुएशन बहुत डेंजरस हो रही थी. कैसे? क्योंकि वो लोग जब जा रहे थे उनको ह्यूमन बॉडीज को ऐसे साइड में करके जाना पड़ता था. उसमें ये मैन थे, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, कुछ एनिमल्स के डेड बॉडीज थे जैसे कि डॉग है, गोट्स है, उनको साइड में हटा के उनको जाना पड़ता था. जितने विलेजेस उन्होंने पास किए इन बिटवीन, कहीं पे भी एक घर भी खड़ा हुआ नहीं था. सारे घर टूट चुके थे, काफ़ी सारे लोग मर चुके थे. ये सब देख के प्रशांत जो है उसको रोना आ गया और उसको गारंटी हो गई कि ही वॉज श्योर कि अभी मेरी फैमिली शायद बचे ही नहीं होगी, क्योंकि इतना डिवास्टेटिंग ये स्टॉर्म था, तो मेरी फैमिली कहाँ बचेगी. इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो ही इज़ वेरी यंग बॉय, 19 ईयर्स ओल्ड. फिर देखो, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीगुड़ा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of the trees, just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. फिर slowly and gradually he reached at the his village. His village name is कालीगुड़ा. जब वो अपने विलेज में पहुंचा कालीगुड़ा में, तो उसका हार्ट बहुत ही ठंडा पड़ गया. मीन्स वो डर गया कि जहाँ पे कुछ सालों पहले या कुछ समय पहले उनका एक घर खड़ा था, वहाँ पे अभी उसके पार्ट्स पड़े हुए हैं, उनके जो बिलोंगिंग्स है, उनका जो सामान था घर के अंदर का, वो पानी में बिखरा पड़ा है, ब्रांचेस के अंदर अटका हुआ है. वो देख के उसे बहुत ही रोना आया. उसके बाद प्रशांत ने डिसाइड किया कि अभी उसको फैमिली को ढूंढे कहाँ पे. तो वहाँ पे रेड क्रॉस, तुमको पता है रेड क्रॉस ये क्या बोलते हैं उसको, एक सोसाइटी है, ओके, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जिसको तुम लोग बोलते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो वो एनजीओ है एक रेड क्रॉस. तो वहाँ पे उन्होंने एक शेल्टर लगाया था रेड क्रॉस ने, कि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज जो है वो फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए, उनको वो लोग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे.
तो क्या हुआ देखो, among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given him up for dead. जब उसने क्राउड के अंदर ढूंढा तो उसे उसकी नानी दिखाई दी. ओके, उसकी नानी को देख के उसे बहुत खुशी हुई. नानी ने भी उसे देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास आई. शी वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि लोग भूख से तड़प रहे थे. 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था. और तुमको पता है गवर्नमेंट हेल्प करती है, पर अचानक से कैसे पॉसिबल है. तो इसीलिए जब नानी ने उसको देखा तो वो बहुत खुश हो गई. उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे डिसाइड करके रखा था कि प्रशांत जो है ये स्टॉर्म के अंदर मर चुका है. पर जब उन्होंने प्रशांत को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हो गए. फिर among the quick words spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the mortally battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. फिर धीरे धीरे उसकी सारी फैमिली उसके आसपास गैदर्ड हो गई. वो लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे. टाइटली दे हग्ड ईच एंड देमसेल्व्स. उसके बाद उसने देखा कि ये जो ग्रुप है उसके अंदर उसकी भाई थी, बहन थे, अंकल थे, आंटी थे, सब लोग आसपास खड़े हो गए. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grip setting upon 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their 4th day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult means crowd of people. अभी नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि डेस्परेट मीन्स ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए. तो क्योंकि कैंप के अंदर 2500 पीपल थे, 97 जितने लोगों ने अपने उनके विलेज के 86 उन्होंने अपने लाइव से जो है यानी वो मर चुके थे. 96 हाउसेज जो थे वो पानी में बह चुके थे. तो उन्होंने डिसाइड किया, मीन्स प्रशांत ने, उनके लिए ग्रीन कोकोनट्स तो थे खाने के लिए, बट अभी क्राउड बढ़ता जा रहा था. तो इतने सारे क्राउड्स के लिए इतने कोकोनट कैसे पॉसिबल है. सो उसने क्या डिसाइड किया देखो. प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, decided to step in as a leader of his village. If no one else did, he organized a group of youth and elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from the fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to feel their bellies. His next task was to organize a team of young volunteers to clean the shelter of the filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures the many who had been injured. प्रशांत ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा. सो ही डिसाइडेड टू बी द लीडर ऑफ हिज विलेज. उसने सोचा कि मैं मेरे विलेज की लीडरशिप करता हूँ. उसने जो भी यूथ्स थे उसको उनको ऑर्गेनाइज किया. एक जो मर्चेंट था ट्रेडर, उसके पास से वो लोग चावल लेके आए. वो चावल ऑलरेडी पानी की वजह से सड़ चुके थे, तो भी उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था. इसलिए उन्होंने जैसे तैसे ब्रांचेस को कलेक्ट किया, उसके ऊपर बड़ा सा पॉट रख के उन्होंने चावल बनाए. 4 दिन के बाद पहली बार वहाँ के जो भी शेल्टर्स में लोग थे उन्होंने पहली बार चावल खाए. वो भी सड़े हुए थे तो भी खाए, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए. उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ये जो फिल्थ है, फिल्थ मीन्स डर्ट, कचरा, गंदगी, उसको साफ करना है. तो उसने वो जो यूथ का ग्रुप बनाया था, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप. और उसके अंदर उन लोगों को अभी एक काम करना था क्लीनलीनेस का, कि सफाई कैसे करें. उन्होंने वो जो फिल्थ था, क्योंकि उनको पता है अगर ये हम लोग ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो इससे एपिडेमिक फैलेगा. इसलिए उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि ये जो डेड बॉडीज है, यूरिन, वॉमिटिंग, जो भी पड़ा हुआ है उसको पहले क्लीन करें. जो जख्मी हुए हैं, जिनको ऐसे लगा हुआ है, उनके वाउंड्स को क्लीन करें. जिनके फ्रैक्चर्स हुए हैं उसको हम लोग कोशिश करें कि हम लोग कुछ कर सके. तो उन्होंने दे हैड ट्राइड देयर बेस्ट. उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि कैसे भी हम लोगों को यहाँ से बचना ही है. So on the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter,
Then they deported the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. Prashant found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and material for shelter. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket match for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institutes for orphans and widows. However, this step was successfully resisted, as it was felt that in such institutions, children would grow up with love and widows would suffer from the stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. अभी देखो क्या हुआ, प्रशांत ने मीन्स लगभग ऑन द 5th डे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आए, वो लोग सर्च आउट कर रहे थे कि कोई बचा है या नहीं, तो उन्होंने ऊपर से मुड़ के पैकेट्स फेंके, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स नहीं आए क्योंकि उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशांत ने आइडिया किया उनके जो भी यूटेंसिल्स थे उसको बजाओ ताकि उन लोगों को मूवमेंट दिखे, कुछ चमके, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे रेगुलरली वो हेलीकॉप्टर्स आने लगे। दे ड्रॉप्ड द बेसिक थिंग्स एज वेल एज फूड, जो भी नेसेसिटीज़ है हमारे डेली बेसिक वो उन्होंने नीचे वो लोग डालते थे, फिर फूड भी डालते थे। फिर प्रशांत को पता चला कि काफ़ी सारे जो चिल्ड्रन हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो मर चुके हैं, काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ है जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, काफ़ी सारे जेंट्स ऐसे जिनकी वाइफ्स जो है वो मर चुकी है। तो उन्होंने एक कैंप डिसाइड किया छोटे बच्चों के लिए, उसने एक टेंट बनवा दिया। ओके, उसके बाद देखो पॉलीथीन की शीट से उसने टेंट बनाया, काफ़ी सारे वीक पास हो गए। फिर उसने सोचा कि पूरा जो भी उनका वहाँ पे जो क्राउड था, द क्राउड वॉज फेल्ट इन ग्रीफ, सब लोग दुख में थे, दर्द में थे, सब लोग रो रहे थे क्योंकि सबने अपने अपने कोई ना कोई अपना खोया हुआ था। प्रशांत ने जो बच्चे थे उनके लिए स्पोर्ट्स प्ले ऑर्गेनाइज किया, जो वीमेंस थे उनको मोटिवेट किया कि आप लोग खाने का संभालो, जो जेंट्स थे उन्होंने दूसरे जो भी काम थे जो उनको करने थे, क्लीनलीनेस, जो भी दूसरे काम थे वो सब उन्होंने जेंट्स ने किए। तो इस तरह से काफ़ी सारे वीक्स जो है वो बीत चुके। फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ प्लानिंग्स बताए, तो प्रशांत ने उसके अंदर देखा कि जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं उनको ऐसी फैमिलीज को दे दो जिनके पास कोई बच्चे नहीं हैं, और जो मीन्स बच्चों को मम्मी ही मिल गई, ओके, मम्मियों को अपने बच्चे मिल गए। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी ऑर्फनेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ही लोकेलिटी में हम लोग हमारे बच्चों को बड़ा करेंगे। मीन्स वो सेम लोकेलिटी में रह के उनको सेम एटमोसफियर में, सिर्फ दे हैव चेंज द फैमिली चेंज हो चुकी थी, क्योंकि मैंने तुमको बताया किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे चले गए, तो जिसके पेरेंट्स नहीं है वो बच्चे उन्होंने एडॉप्ट कर लिए। समझ में आ रहा है? फिर इस तरह से उनका पूरे विलेज के अंदर सब कुछ सेटलमेंट हो गया। Then it is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youth face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. राइटर ने यहाँ पे बोला है कि 6 months के बाद सब कुछ सेटल हो गया, क्योंकि वो जो सुपर साइक्लोन आया था उसने जो डिवास्टेशन फैलाया था वो काफ़ी तौर पे कम हो गया। प्रशांत का जो स्पिरिट था वो वाउंडेड, यानी उसका मन बहुत दुखी था, बट उसने वो कभी दिखाया नहीं और उसने कभी अपने दुख के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके फेस पे वो खुशी दिख रही थी जैसे कि जो विडोज थी उन्होंने बच्चों को किसी को एडॉप्ट कर लिया, और वो जो फैमिलीज थी वो अपने अपने काम में, रेगुलर काम में जुड़ चुकी थी। काफ़ी सारे लोग उसको भूल तो नहीं सकते, बट दे वर स्टार्टेड देयर रेगुलर रूटीन। इस तरह से प्रशांत ने, यानी ही वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, 19 ईयर्स ओल्ड होते हुए भी उसने किस तरह से फैमिली को बचाया, किस तरह से उसने फैमिलीज की हेल्प की, उसके गांव को बचाया। अगर वो चाहता तो अपने ही परिवार को बचा के दूसरी जगह जा सकता था, पर उसने वैसा किया नहीं। तो इसीलिए
तुमको अगर पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको एक अवार्ड भी दिया हुआ है। तो ऐसे सारे वॉलंटियर्स हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा 6th चैप्टर था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन आंसर्स है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो तुम लोगों को अपनी सप्लीमेंट्री की जो भी नोटबुक तुमने बनाई होगी उसमें लिखना है। ओके गाइस, बाय।